Good morning, everyone. It seems that you people are very nice. I don't have to ask. Feeling very good. All right. Good morning. So cash flow is going on, right? And till yesterday we have discussed about the operating activity in detail. Cash flow from operating activity. All the stages we have discussed. The first stage which we have learned in operating activity was net profit before tax and extraordinary item, right? And then what we have added and subtracted, क्या प्लस किया था हमने? नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस क्या किया था? ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग इनकम काइंड ऑफ थिंग हमने रिड्यूस किया था, ठीक है? उसके बाद कौन सी स्टेज थी? नेट प्रॉफिट प्लस डीए, right? Decrease in current assets, increase in current liability that we have done. And after that, what we have done? Minus income tax, if you have income tax, and then extraordinary items, okay? So these were the stages which we have learned in the cash flow from operating activity. And finally, we have calculated cash flow from operating activity, या cash used in operating activity, right students? Okay. Now our next activity is cash flow from investing activity. I hope you know that what is investing activity. Investment karna. If you are investing somewhere, means you are purchasing fixed assets, you are buying shares and debentures of any other company, you are buying some securities, right? So this is what? This is investment. And in investing activity we have inflow and outflow, right? When you are purchasing these things, so this is which flow? When you are purchasing, this is which flow? Outflow. When you are selling, inflow. All right. So this is very, very easy. And in yesterday's video, I have taken a question where we have calculated depreciation. Do you remember? Yes, ma'am. Machinery account बनाया था हमने. Okay. Fixed assets account and accumulated depreciation. Yeah. Provision for depreciation. So the same thing we have in investing activity also, because this is directly related to your fixed assets, okay? So from these accounts we can find out, these accounts are helpful. Sometimes the information is not given very clearly. The hidden informations are depreciation, total depreciation which you have charged during the year on these assets, which is required in the operating activity, and then sale of machinery, yeah, purchase of machinery, purchase of assets, these kind of things. Flow इसी से ही पता लगेगा ना, so it is helpful, okay? So I'm taking one illustration. Illustration 36. Okay, here the accounts are there. So those who were absent yesterday, उत्पल आप absent थे बेटा कल, तो ये चीज़ ध्यान से समझेंगे, ठीक है? Illustration 36, page number 5.44. Although you don't have to enter in the book में मत घुस जाना. सिर्फ आपको knowledge के लिए बताया कि this is the question. Okay, be attentive. From the following information, पुरानी भी बुक है तो आपको मिल जाएगा ये नियर अबाउट, मैं रीड कर रही हूँ, आप फाइंड आउट कर सकते हैं. फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. Here the machinery is given 4,20,000 and 4 lakh. Okay, accumulated depreciation and patents are there, 1,60,000 and 1,80,000. Remember students, which balances are given? Either the year is given or opening and closing balances are there. In this question we have closing balances first and then opening balance. So you should be very clear what is this opening balance and what is this closing balance. ओपनिंग बैलेंस यानी स्टार्टिंग का, क्लोजिंग बैलेंस यानी एंड, ठीक है? तो ओपनिंग बैलेंस कौन से साल का है? प्रीवियस ईयर. एंड क्लोजिंग बैलेंस इज ऑफ द करंट ईयर. इज दैट ओके? ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए, अदरवाइज आपको क्वेश्चन पूरा आता है एंड यू आर कंफ्यूज्ड हियर, सो देयर इज नो यूज ऑफ डूइंग द क्वेश्चन. ओके, सो वेयर इज द डस्टर? So here we have the opening and closing balances. I hope it's clear.
Okay. Now additional information they have given: during the year a machine costing 40,000 with its accumulated depreciation of rupees 24,000 was sold for 20,000, and patents written off for 40,000, and some patents were sold at a profit of 20,000. Okay. Now if you look at these balances, opening and closing balance, you can see मशीन का ओपनिंग बैलेंस 4 लाख है, यानी लास्ट ईयर मशीन आपकी 4 लाख की थी, एंड क्लोजिंग बैलेंस इसका 4,20,000 है. ठीक है. अगर आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी तो हमें क्या पता लगता है इससे? यस, सचिन एंड हासिम, 4 लाख की लास्ट ईयर थी, अब 4,20,000 है. कितनी बढ़ गई? 20,000. तो 20,000 बढ़ जाने का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि ये इनफ्लो हो गया, चीज़ बढ़ गई तो लगता है ना पैसा आ गया, लेकिन यूज योर माइंड. यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 4 लाख की असेट्स थी, अब 4,20,000 हो गई. असेट्स बढ़ गई यानी कि आपने परचेज की होगी. यस और नो? परचेज किए तो कौन सा फ्लो हो जाएगा? आउटफ्लो. जबकि फाइनेंसिंग में इसका उल्टा होगा. आप ध्यान रखेंगे कि 1 लाख का शेयर था, 1,20,000 हो गया, शेयर की वैल्यू बढ़ गई 20,000, यानी इशू हो गया. इशू हो गया तो इनफ्लो हो गया. आर यू अंडरस्टैंडिंग? आपकी कॉन्सेप्ट्स क्लियर होनी चाहिए. ठीक है. इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या चीज़ें हैं बच्चों? क्या चीज़ें हैं? असेट्स हैं. असेट्स की वैल्यू बढ़ती है तो कैसे बढ़ेगी? जादू से नहीं बढ़ेगी. इवन असेट्स पर डेप्रिसिएशन लगता है, राइट? हेलो. तो क्यों बढ़ रही है? आपने परचेज किया है. परचेज करते हैं तो कौन सा फ्लो होता है? आउटफ्लो होगा. ओके. नाउ नेक्स्ट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, देन पेटेंट्स आर देयर. लास्ट ईयर आपका पेटेंट कितने थे? 2,80,000, और अब कितने हैं? 1,60,000. अगर हम कुछ और इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, उत्पल आप समझ रहे हैं बेटा? ठीक है. तो हमारे पेटेंट्स कम हो रहे हैं, मीन्स वी हैव सोल्ड, सेल किया है, तो ये कौन सा फ्लो है? इनफ्लो. बट वी कांट रीच एट द कंक्लूजन एट दिस स्टेज बिकॉज वी हैव एडिशनल इंफॉर्मेशन. ओके. तो यहाँ पे हम ये डील नहीं कर सकते, पहले हमें अकाउंट बनाने होंगे. ऑल राइट. सो लेट्स प्रिपेयर द फर्स्ट वन. वी हैव 2 assets. फर्स्ट वन इज मशीनरी एंड देन वी हैव पेटेंट्स. दीज 2 assets आर देयर. और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आपका मशीन पे है. ठीक है. तो सबसे पहले हमने बनाया मशीनरी अकाउंट. ऑल राइट. एंड साइड बाय accumulated depreciation account. Assets are having which balance? Yesterday I have told you. Assets का कौन सा बैलेंस होता है? ऊपर सचिन कौन सा होता है? डेबिट बैलेंस. सो ओपनिंग बैलेंस हमारा डेबिट से शुरू होगा. ठीक है. ये डेबिट है, ये क्रेडिट है. दिस इज डेबिट एंड क्रेडिट. ऑल राइट. So to balance brought down, how much is given? 4 lakh. Be attentive students. This can skip from my mind. What is the opening and closing? So be alert. And closing one is, how much is this? 4,20,000. ठीक है. Okay. Now we have accumulated depreciation. Accumulated depreciation या provision for depreciation एक ही बात है. दिस इज वन एंड ऑल इज द सेम थिंग. ऑल राइट. ठीक है. प्रोविजंस के क्या बैलेंस होते हैं? इट्स अ लाइबिलिटी. क्या बैलेंस होंगे? क्रेडिट बैलेंस होंगे. तो ओपनिंग बैलेंस कहाँ से शुरू होगा? क्रेडिट की तरफ से. बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. हाउ मच ओपनिंग बैलेंस इज गिवन? 1 lakh. यस, क्लियर? मेंशन कर लिया. चलिए. नाउ द फर्स्ट पॉइंट इज टेलिंग ड्यूरिंग द ईयर अ मशीन कॉस्टिंग 40,000 with its accumulated depreciation of rupees 24,000, okay, was sold for 20,000. अब देखो इसमें इंफॉर्मेशन क्या दिया है. ज़रूरी नहीं है वो हमेशा आपको एक ही तरह की इंफॉर्मेशन दे. इट कैन प्रोवाइड द डिफरेंस द इंफॉर्मेशन इन अनदर वे. सो इट्स टेलिंग ड्यूरिंग द ईयर मशीन कॉस्टिंग, मशीन की कॉस्ट क्या थी? 40,000. ओरिजिनल कॉस्ट उसकी 40,000 थी, विच मस्ट हैव इंक्लूडेड इन दीज मशीन्स. इसमें इंक्लूड होगी. ओके.
विद इट्स एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ 24,000, इस मशीन पे आज तक का कितना डेप्रिसिएशन लग चुका है, कितना लग चुका है 24। ये बोल रहा है कि 40,000 की मशीन है, इस पे आज तक 24,000 का डेप्रिसिएशन लग चुका है, ठीक है। 40,000 की मशीन है, 24 डेप्रिसिएशन लग गया, ओके। व्हाट इज द रिटर्न डाउन वैल्यू, आज की डेट में क्या वैल्यू आ जाएगी इसकी, ठीक है। क्लियर है उत्पल, हासिन, सचिन, समझ आ रहा है। 40,000 की कॉस्ट थी, 24,000 आज तक का टोटल डेप्रिसिएशन लग चुका है। सो व्हाट इज द रिमेनिंग वैल्यू, दिस इज कॉल्ड रिटर्न डाउन वैल्यू इज 16,000, ओके। नाउ फर्दर ही इज टेलिंग दैट वाज सोल्ड फॉर 20,000, ये वाली मशीन जिसकी वैल्यू रिटर्न डाउन वैल्यू 16,000 है, वो आपने 20,000 में बेच दी है, ठीक है। प्रॉफिट है या लॉस है, 16,000 की चीज 20,000 में बेच रहे हैं, प्रॉफिट है या लॉस है, प्रॉफिट है, ओके। क्लियर। नाउ वी हैव टू मेंशन इन द अकाउंट, सेल की क्या ट्रांजैक्शन हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, ओके। सो बाय बैंक, हाउ मच, 20,000। डू यू हैव प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट, हाउ मच, 4,000। प्रॉफिट किधर आएगा, ठीक है, लॉस होता है तो इधर आ जाएगा, प्रॉफिट है तो इधर आ जाएगा, टू प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ दिस, इट्स 4,000, ठीक है। व्हाट एल्स वी मेंशन, यहाँ का हमारा अभी इनकम्प्लीट है, डेप्रिसिएशन, क्या मेंशन करते हैं आप, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन हमें इस मशीन पे कितना लगेगा वो दे रखा है, दे रखा है, कितना है 24,000, ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, ठीक है, यानी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, जो टोटल इस 40,000 पे आज तक टोटल 24,000 लग चुका है, ठीक है। सो दिस इज माय बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज 24,000। ऑलराइट स्टूडेंट्स, क्लियर है ये चीज, फाइन, यस। लुक हियर, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की एंट्री बताएं मुझे इस अकाउंट से देख के। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मशीन के क्रेडिट की तरफ है तो मशीन अकाउंट तो क्रेडिट होगा, और डेबिट क्या होने वाला है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। सो द एंट्री इज एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू, इट्स 24,000, ठीक है, फीड कर दिया। So let's talk about the machinery account, do its total, let's balance this. This is 4,04,000 and this comes 4,40 and 24. Just do the total. 4,64 है और हम committing mistake somewhere चाहिए. Okay, 4,64,000 and here we have only 4,04,000. ठीक है, तो बैलेंस लेजर का हमने कैसे सीखा था बैलेंस करना, द मैक्सिमम टोटल वी राइट एट बोथ द साइड्स, ओके। नाउ व्हाट इज द बैलेंसिंग फिगर, 60,000 हो गया बैलेंस। नाउ दिस इज व्हाट, परचेज ऑफ मशीनरी। So please have a look, although I have explained it yesterday, but just recall that depreciation which we have learned in 11th standard and pay attention. Machine account assets है, assets के डेबिट बैलेंस होते हैं, ओपनिंग बैलेंस इधर आएगा, क्लोजिंग इधर आएगा। किसी भी रीजन से आपकी मशीन के बैलेंसेस क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं तो वो डेबिट में आएंगे, किसी भी रीजन से बैलेंसेस कम हो रहे हैं तो वो क्रेडिट में आएंगे। सेल करते हैं तो बैलेंस बढ़ेगा या कम होगा, जल्दी बोलो। व्हाट हैपन व्हेन यू आर सेलिंग द मशीन, बढ़ेगा। मशीन को सेल कर रहे हैं तो बैलेंस कम होगा बढ़ेगा, कम होगा। 5 लाख की मशीन में से 2 लाख की आपने सेल कर दी तो विल दैट इंक्रीज और डिक्रीज, ओके। एंड आप परचेज कर रहे हैं, मान लीजिए 4 लाख की मशीन थी, 60,000 की और परचेज कर ली तो बढ़ेगा या कम होगा, बढ़ेगा, ओके। तो डेबिट बैलेंस है, बढ़ेगा वो इधर आएगा, कम होगा वो इधर आएगा। एंड वी डिड नॉट वर्क ऑन दिस बेसिस, कंसेप्चुअल बेसिस पे हमने किया, कॉन्सेप्ट्स के अकॉर्डिंग हमने किया, ठीक है। एंट्री क्या होती है जब आप मशीन परचेज करते हैं, टेल मी द एंट्री फास्ट, परचेज मशीनरी एंट्री बोलो, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, सो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। सेल करते हैं तब क्या एंट्री होती है, बैंक टू मशीनरी,
बैंक टू मशीनरी, डेप्रिसिएशन लगती है जब क्या एंट्री होती है, डेप्रिसिएशन टू मशीनरी, सो डेप्रिसिएशन टू मशीनरी, ओके. So these are the journal entry only in the accounts form. Fine. So we have balanced this and logically देखिए, आपके पास स्टार्टिंग में 4 लाख की थी, ठीक है, आपने बेच दी उसमें से 20,000 की, डेप्रिसिएशन लगा दिया 2,24,000 का, और आपके पास बच गई 4,20,000 की. कोई जादू है क्या? हेलो, डोंट लुक एट दिस जादू, लुक हियर. यस, आपके पास 4 लाख की थी, आपने 4 लाख में से बेच दी है, यू हैव प्रोवाइडेड द डेप्रिसिएशन एंड यू हैव अ क्लोजिंग बैलेंस दैट्स मोर देन दिस. हाउ दिस हैपेंस? It is because of purchase. You might have purchased some another machinery also, okay, and that we have calculated. This is 60,000. Is that clear? Now the 60,000, students, can you find out some flow here? How many flows you are finding over here? Machinery account में investing activity है, ये तो clear है, invest कर रहे हैं या purchase है या sale है. कौन से flow हैं यहाँ पे बताएं जल्दी से. Those who are staying at home, you should also think about that. And you have sold the machinery. Look here, you have sold the machinery of 20,000. Assets बेचते हैं तो कौन सा फ्लो हुआ है? आपने assets बेची है 20,000 की, and you can see बैंक अकाउंट मैंने लिखा है, ठीक है, तो ये कौन सा फ्लो है? इनफ्लो, ओके. एंड हियर यू आर परचेजिंग द मशीनरी, तो ये क्या है? आउटफ्लो. अंडरस्टूड? तो ये 2 ट्रांजेक्शन हमारी इन्वेस्टिंग की आ गई है. ऑल राइट, इज दैट क्लियर? यस मैम. एक्यूमुलेटेड को कंप्लीट करते हैं पहले. नाउ वी हैव मेंशन्ड दिस 24,000, इट्स ओपनिंग एंड क्लोजिंग. लेट्स डू द टोटल. इट इज 1,34,000 and this is 1 lakh, so we have 34,000 remaining. So what is this, students? ये 34,000 क्या चीज है? Depreciation. क्यों और कैसे? Look here. This is the complete block of machinery. ये मशीनरी का पूरा ब्लॉक है. The machinery which we have sold, we have provided the depreciation 24,000 and I have reduced from this account. But rest of the machineries are still in the business and we have to provide the depreciation on all those assets, block of assets, okay. तो total इस साल आपने कितना depreciation सभी machines पे provide किया है, that we calculate from accumulated depreciation account, that is 34,000, okay. And just listen this philosophy. Here you have the starting one. अभी तक आपके पास 1 लाख था, ठीक है, साल में आपने 34,000 और लगा दिया, तो दिस बिकेम 1,34,000. इसमें से 24,000 आपने माइनस कर दिया बिकॉज यू आर सेलिंग वन पार्ट ऑफ द मशीनरी. आप बेच रहे हैं तो उसका डेप्रिसिएशन भी आपने हटा दिया, एंड बाकी बची हुई मशीन्स पे आज तक आपका 1,10,000 डेप्रिसिएशन है, ठीक है. तो ये 4,20,000 का जो ये मशीन है, इस पे 1,10,000 का आपका डेप्रिसिएशन है. इज दैट ओके? समझ आ गई बात? नेक्स्ट हमारे पास अकाउंट है पेटेंट. अगली जो आपकी असेट्स दे रखी है वो है पेटेंट. सो वेयर टू प्रिपेयर, वी डोंट हैव प्रॉपर स्पेस बट विल बी डूइंग हियर. पेटेंट्स अकाउंट, पेटेंट असेट्स है having the debit balances and we have the balances, opening balances 2,80,000 जो आपका डेबिट है. It's 2,80,000 पेटेंट का ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग इज 1,60,000. बाय बैलेंस कैरी डाउन, इट्स 1,60,000. Is that okay? Fine. Now look at the information which they have given. Patents written off were rupees 40,000 and some patents were sold at a profit of 20,000. अब देखो, I've just told you they don't give the similar kind of information, they give the different kind of thing. अब इस statement में क्या दिया है आपको? Patents were written off. Patents पे depreciation नहीं लगता, depreciation word tangible assets पे लगता है. इनटेंजिबल असेट्स पे या तो राइट ऑफ करते हैं या अमोर्टाइज बोलते हैं, ठीक है. तो पेटेंट्स को राइट ऑफ किया है तो इट इज़ अ काइंड ऑफ रिडक्शन इन द वैल्यू.
तो आप अपनी लैंग्वेज में इसको डेप्रिसिएशन कह सकते हैं, ठीक है। इज दैट क्लियर? 40,000 रिटर्न ऑफ, तो वेयर टू राइट डेप्रिसिएशन कहाँ लगता है? इस तरफ लगता है, ठीक है। बाय व्हाट टू राइट? amortized. How much? 40,000. डोंट राइट डेप्रिसिएशन। इंटेंजिबल असेट्स में डेप्रिसिएशन वर्ड यूज नहीं करते, या तो रिटर्न ऑफ लिखते हैं या amortized लिखते हैं, ओके। नाउ फर्दर इंफॉर्मेशन, एंड सम पेटेंट्स वर सोल्ड एट अ प्रॉफिट। अब इस क्वेश्चन में पेटेंट्स के लिए आपको सेल प्राइस नहीं दे रखा है, अभी तक आपको मिलता था दिस इज द सेल प्राइस, ओके, बट यहाँ पे आपको सेल प्राइस नहीं दे रखा, आपको प्रॉफिट या लॉस दे रखा है। एंड हियर वी हैव अ प्रॉफिट, पेटेंट्स वर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20,000, ठीक है। तो प्रॉफिट किस तरफ आता है? losses comes to this side and profit comes to this side as we have, okay. So to profit and loss account, this is your profit 20,000, ठीक है। What to do now? Which informations we have? We have opening balance, closing balance, we have a kind of depreciation which is amortized value, okay, and we have the profit. Sale price नहीं दे रखा, एक ही चीज मिसिंग है, so we can find out how? Balancing figure, just balance this account. Here we have 2 lakh and here we have 3 lakh, okay. So the balancing figure is 1 lakh. This is what? By a bank account. Is that okay? तो ये क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू पेटेंट्स। बैंक अकाउंट डेबिट टू पेटेंट्स कौन सा फ्लो है? बैंक अकाउंट डेबिट टू पेटेंट्स, पेटेंट सेल कर रहे हैं, कौन सा फ्लो है? समझ आया कुछ? लविश आ रहा है समझ में आपको? बोथ ऑफ यू सेल करते हैं, सिंपल सी चीज़ है, आप सोच के देखो, आप सेल करते हैं कोई चीज़ तो आपके पास पैसा आ रहा है, वो इनफ्लो है, और क्योंकि ये असेट्स है तो इसलिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, राइट। सो वी हैव प्रिपेयर्ड दीज 3 अकाउंट्स एज अ वर्किंग नोट एंड नाउ द सॉल्यूशन इज वेरी वेरी सिंपल, ठीक है। क्या लिखते हैं सॉल्यूशन में? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या होगा? इनफ्लो एंड आउटफ्लो, दैट्स ऑल, ओके। सो वेयर टू राइट? चलिए लेट्स रिमूव दिस। Here we are preparing cash flow from, yes please, cash flow from investing activity. The first one, yes, the first flow is, ये क्या चीज है? बैंक टू मशीनरी, क्या था ये? सेल ऑफ मशीनरी, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ मशीनरी। How much inflow? 20,000, ठीक है। Then second one, here this is machinery account debit to bank, purchase of machinery, it's 60,000, this is outflow, ठीक है। And here bank account debit to patents, sale of patents, proceeds from sale of patents, how much? It's 1 lakh. Is that okay? So how much comes? We have to find out the net value of all that. Inflow 20, inflow 1, 1,20,000 minus 60,000. What comes? ठीक है। So this is your cash flow from investing activity. Is that okay? Yes. Are you people understanding? तो क्या ये मुश्किल है? 11th वाला अकाउंट है जो हमने कल किया था, ठीक है। अकाउंट बनाना है, आप प्रैक्टिस करेंगे, 1-2 बार करेंगे तो आपको आ जाएगा, ओके। So here we have completed this investing activity.
So students, we have one more activity, that is cash flow from financing activity. So we are short of time in this period now, so that we will take in the next class. Okay, so do the practice of all these questions. Thank you.